Hi friends, welcome on Europedia. And if you are going for exam of BSNL Senior Technical Executive, Senior Executive Trainee, SET, then project management is a topic for you. And in that project management, there is a topic PERT and CPM. Now PERT and CPM में most ticklish but the easiest subtopic is float, slack, critical path and how to find out critical path. This video, I think 15 minutes video, is related to that only. You will understand this concept. What is critical path, what is float, what is slack, surely you will understand that. And BSNL is a wonderful opportunity, friends. So in case you are planning to go for this exam, go well prepared. Now let me start with what is this. You can see this. This is called network diagram, and this diagram flows in the forward direction. Now this is called सर्कल में जो तुम्हें नजर आ रहा है इनको बोलते हैं नोड्स, नोड और इवेंट. दीज आर कॉल्ड नोड्स और इवेंट्स जो आपके सर्कल के अंदर हैं. दिस इज द स्टार्टिंग नोड, दिस इज द एंड नोड. दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. तो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग आपका यहां से होता है एंड यहां पे प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है. प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एट द एंड नोड. तो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन, प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग. इट स्टार्ट्स विद वन इवेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट. बीच में बहुत से नोड्स हैं. एनी टू नोड्स, बिटवीन एनी टू नोड्स देयर आर एक्टिविटीज. एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज. नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एक्टिविटी कैन बी sequential, one after another, or it can be parallel or consequent, I mean parallel activities. A, B, C, all these three activities start from the same event, starting event. So A, B, C are parallel activities. But if I take you to activity E is the successor activity of activity B. Activity E is a successor of B. Unless until B will be completed, E cannot be started. So B will complete at this event, and this event is saying that B is complete, now E will start. तो E successor है, B predecessor है. पहले वाली को predecessor बोलते हैं, बाद वाली को successor बोलते हैं. तो project is combination of activities. Every activity has a time duration, 25 days, 15 days, 20 दिन. And once all the activities will be complete, project will be complete. So we need to find out project का completion time क्या होगा. In how many days your project will be completed. Minimum how many days the project will be completed. To find out the minimum days in which project will be completed, when we say project is complete means all activities should be complete. All activities should be complete. Should be complete. कोई भी एक्टिविटी अगर छूट गया तो प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट. सो व्हेन वी वांट टू आंसर व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच ऑल एक्टिविटीज विल बी कंप्लीट. नाउ वी गो विद द लॉन्गेस्ट पाथ, मैक्सिमम टाइम. अगर हमारे पास स्टार्टिंग टू एंड इफ वी हैव डिफरेंट पाथ्स, लेट मी टेल यू डिफरेंट पाथ्स. दिस कैन बी वन पाथ, this can be another path, this can be third path, this can be fourth path. So these can be paths. जो सबसे लंबा path है that is called critical path. Longest path is called critical path. Why? Because this only decides completion time of the project. Minimum time taken to complete a project is actually the maximum length of the path, जिसको critical path बोलते हैं. So critical path is the longest path on the network diagram. क्योंकि अगर critical path या longest path हमने कंसिडर किया, लेट्स से टोटल डेज आर 60, longest path is 60. So in 60 let us say these all activities are done. बाकी all paths are lesser than that, 50, 55. So if you give me 60 days, all the activities which take 55 days, 50 days will also be complete. So go with the longest path. अगर longest path complete हो गया तो shortest path तो complete हो ही जाएंगे. अगर 60 दिन वाली एक्टिविटीज, अगर all these activities take 60 days, if 60 days में these activities are complete, so the activities which are going to take 50 days, 55 days will also be complete. That is the purpose. So what is critical path? Longest path. And what is the significance of critical path?
the minimum time taken to complete a project is actually the critical time or the length of critical path. So यहाँ पे दो चीज आ रही है, minimum time taken to complete a project, maximum length on network diagram. So longest path on the network diagram decides the minimum duration of completion of project. That is how you have to understand it. अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स तीन कलर नजर आ रहे हैं, एक रेड कलर नजर आ रहा है, ये क्रिटिकल पाथ है सबसे लंबा, एक ब्लैक कलर नजर आ रहा है, दूसरा ब्लैक कलर नजर आ रहा है, दे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज. व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिटिकल? अर्जेंट, बिकॉज अगर क्रिटिकल पाथ पे डिले हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, बिकॉज लॉन्गेस्ट पाथ अगर डिले हो गया तो ऑब्वियसली डिले हो जाएगा. तो हमारे पास कोई बफर नहीं होता. क्रिटिकल पाथ जो होता है, the people who are working on critical path, machines which are working on critical path, they do not have oxygen, they do not have scope of delay. Now that scope of delay or buffer is called float or slack. उसी को float बोलते हैं. Float is for activities, slack is for events. Arrows are activities and nodes are event. तो slack is calculated on nodes, events, circles, and floats are calculated on activities. What is float? The slack period. I mean, कितना आप डिले कर सकते हो. एक एक्टिविटी इज टू टेक हाउ मच डिले वन पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन हैव विदाउट डिलेइंग द टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो क्रिटिकल पाथ के ऊपर स्लैक इज जीरो, फ्लोट इज जीरो. व्हाई? बिकॉज क्रिटिकल पाथ पे डिले का कोई स्कोप नहीं है. देयर इज नो स्कोप ऑफ डिले. डिले ऑन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड फ्लोट एंड डिले ऑन नॉन क्रिटिकल इवेंट इज कॉल्ड स्लैक. सो देयर कैन बी डिले ऑन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, delay on non-critical activity, but not on this. Okay, so now I'll be showing you how critical path is to be calculated and how non-critical path is to be calculated and how floats and slacks are to be calculated. Okay, so friends, now let's see how to calculate critical path. तो देखो किसी भी any activity, it has a starting time and it has end time. Now let's talk about activity A. The start time of this activity A, let's assume the start time of this activity is okay, yeah, we will make like this. What is the meaning of this is, activity A, activity B, activity C will start at 0 time. तो इसको हम बोलते हैं EI. लेट्स से इस नोड का नंबर है 1, E1 L1. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम E1. सो अर्लीस्ट कब स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी A को? 0 टाइम पे, B को 0 टाइम पे, C को 0 टाइम पे. ठीक है, अब चलते हैं नोड नंबर. हम लेट्स से इस नोड का नंबर है हमारा 10, ये नोड नंबर 10 हो गया. तो इसको हमने लेट्स से 2 दे दिया, L2 दे दिया. अब इस पे देखते हैं हम एक्टिविटी डी को अर्लीस्ट कब स्टार्ट कर सकते हैं. तो एक्टिविटी ए को अर्लीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं E1 पे. एक्टिविटी डी को हम अर्लीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं जब ए कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज डी तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ए कंप्लीट नहीं हो गया. तो यहां पे हमने लिख दिया 25. ये जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है E25, दिस इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर दिस एक्टिविटी डी. उसी तरीके से मान लो इसको मैंने लिख दिया E3 L3. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये E3 किसके लिए है? दिस इज फॉर एक्टिविटी E. E तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक B ना हो जाए. तो B होगा हमारा 15 दिन के अंदर. तो हम यहां पे लिख देते हैं 15, मतलब मैं एक्टिविटी E स्टार्ट कर सकता हूं 15 दिन के बाद, अर्लीस्ट. सिमिलरली यहां पे अगर आ जाएं, लेट्स से मैंने इसको लिख दिया E4 L4. अब बताओ मैं अर्लीस्ट एक्टिविटी H को कब स्टार्ट कर सकता हूं? जब C कंप्लीट हो जाएगी. C कंप्लीट होगी 20 दिन के बाद, तो E20. समझ आ गया आप लोगों को? ये मैं अर्लीस्ट A B C को कब स्टार्ट कर सकता हूं? 0 पे. अर्लीस्ट मैं एक्टिविटी D को कब स्टार्ट कर सकता हूं? जब A कंप्लीट हो गया 25 दिन के बाद. E को कब कर सकता हूं? 15 दिन के बाद जब B हो जाए. H को कब कर सकता हूं? 20 दिन बाद जब C हो जाए. डन. अब झगड़ा पड़ेगा भाई साहब यहां पे E5 पे, E5 L5. अब ये E और L5 क्या है? E है इस नोड के लिए. अब
E5 मतलब अर्लीस्ट मैं F को G को कब स्टार्ट कर सकता हूं, मैं अर्लीस्ट F को या G को कब स्टार्ट कर सकता हूं, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये E जो है ये अगली एक्टिविटीज के लिए है, ठीक है। मैं F को तभी स्टार्ट कर सकता हूं जब मेरा A D B E सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बता सकते हैं कितने दिन के बाद? 25 दिन प्लस 10 दिन D को लगेंगे 35, 15 दिन B, 5 दिन E, 20 दिन। तो मैं क्या लिखूं? A को 25 दिन लगेंगे, D को 10 दिन लगेंगे, तो 35 दिन के बाद A और D दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। मैं F को स्टार्ट कर सकता हूं। क्या 35 दिन में B और E भी कंप्लीट हो जाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि 15 दिन और 5 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी नोड में दो रास्तों से पहुंच रहे हैं, एक इस रास्ते से और एक इस रास्ते से, इस नोड पे पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता एक ये रास्ता, बड़े वाला रास्ता लो, क्योंकि जब आप बड़े वाला रास्ता लोगे तो सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी होंगी। 35 दिन में A और D भी हो चुकी होगी, B और E भी हो चुकी होगी। एग्री? डन। अब यहां पे चलते हैं E6 L6, मैंने नाम दे दिया इनको, ये नोड के नंबर कुछ और हैं, वैसे नंबर होना चाहिए, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, ऐसा नोड हम कर सकते हैं। अब मैं एक्टिविटी I को कब स्टार्ट कर सकता हूं? जब F हो जाए। जब F हो जाए, F को कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। 35 और 15 कितने होते हैं? 50 दिन हो गए। अब मैं 50 दिन के बाद I को स्टार्ट कर सकता हूं। अच्छा, मैं J को कब स्टार्ट कर सकता हूं? J एक्टिविटी को, J को कर सकता हूं, लेट्स से दिस इज E7 L7, मैं J को स्टार्ट कर सकता हूं जब मेरे पास G कंप्लीट हो जाए। और G कब कंप्लीट होगी? 35 और 10 45 दिन के बाद, मतलब 45 दिन के बाद मैं J को स्टार्ट कर सकता हूं। अब मेरे को ये बताइए कि सारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा? सारा कंप्लीट हो जाएगा जब I भी कंप्लीट हो जाए, J भी कंप्लीट हो जाए, H भी कंप्लीट हो जाए। I कंप्लीट होगा, लेट्स से दिस इज 8 L8, लेट्स से 50 प्लस 10 60। क्या 60 दिन में J भी हो जाएगा? हाँ जी, 45 प्लस 5 50, हाँ ये 50 है। तो यहां तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, 1 2 3। सबसे लंबे के थ्रू जो आपको टाइम मारा है उसको लिखो। यहां 20 प्लस 20 40, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 10 60। तो सबसे लंबे को ले लो 60, और जैसे ही ये 60 आ जाए यहां पे भी 60 लिख दो। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से मैच कर दो। अब ये E जो होता है ये अगली एक्टिविटी के लिए कि इसके बाद कुछ करना हो, इस प्रोजेक्ट के बाद अगर कुछ भी करना है तो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा भाई साहब 60 दिन के बाद करना, 60 दिन में मेरी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी सारी एक्टिविटी 60 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, सारी मिला के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कुछ नहीं छूटेगा। 60 दिन के बाद जो भी प्लान करना अगला प्लान कर लो। लेटेस्ट फिनिश टाइम इस प्रोजेक्ट का इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नेक्स्ट वेंचर। आगे जो भी करना है अगर उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मैं बोल रहा हूं तो 60 दिन के बाद करना, मतलब मैं लेटेस्ट बाई 60 दिन में इसको कंप्लीट कर लूंगा। अब पीछे की तरफ चलना स्टार्ट करो। पीछे की तरफ जब चलोगे, अगर इसको मैं 60 दिन में कंप्लीट कर रहा हूं, 10 दिन इस एक्टिविटी को चाहिए, तो यहां 50 लिखो। अगर इसको 50 है, 15 इसमें लग रहे हैं, तो यहां 35 लिखो। लेकिन एक ट्रबल है, इस नोड तक आने का रास्ता एक तो ये है, एक ये है, तो यहां 60 लिखा, 60 में से 5 कम किए, 60 में से 5 कम किए तो 55 हो गया। 55 में से 10 माइनस किए तो 45 हो गया। लेकिन इस रास्ते से तो 35 हो रहा था, इससे 45 हो रहा है, तो कौन सा लेना है? जो छोटे वाला है। पहले बड़े वाला ले रहे थे, अब छोटे वाला ले रहे हैं। दोबारा सुनो ध्यान से, जैसे E आएगा L और E को बराबर कर दो, फिर बैक चलो। ये L 60 है, 60 में से 10 किए तो यहाँ पे L 50 लिखना है। यहाँ 60 है, 60 में से 5 किए तो यहाँ L 55 लिखना है। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, तो जिस रास्ते से छोटा है वो ले लो। अब यहाँ 35 माइनस 10 25, अब यहाँ पे 60 माइनस 20 40। अब यहाँ देखना 40, ये 35 है, 35 माइनस 5 ये कितना आ गया? 30। अब यहां से 30 माइनस 15 15, यहां 40 माइनस 20 20, 25 माइनस 25 0, तो छोटे वाला है वो ले। अब आपका क्रिटिकल पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ वो होगा जिसपे E और L की वैल्यू सेम होंगी, E एंड L 0 0, E L एंड 25 25 ये, और सबसे लंबा पाथ भी यही होगा। तो आप देखोगे कि जो लाल रंग से लिखा है सबसे लंबा पाथ है ये, इसको बोलते हैं आपका क्रिटिकल पाथ। इस क्रिटिकल पाथ के ऊपर स्लैक होता है इन दोनों का डिफरेंस। किसी भी बेसिकली नोड के ऊपर स्लैक होता है
डिफरेंस ऑफ E एंड L माइनस E ऑन एनी इवेंट इज कॉल्ड स्लैक। जैसे इस पे स्लैक 0, इस पे स्लैक 0, इस पे स्लैक 0, लेकिन यहां पे स्लैक कितना है 20, यहां पे स्लैक कितना है 10। तो जो नॉन क्रिटिकल इवेंट हैं, मतलब इवेंट जो नॉन क्रिटिकल पाथ पे आते हैं, जो नॉन क्रिटिकल इवेंट हैं वहां पे L और E का जो डिफरेंस है वो आपको स्लैक देता है। तो नॉन क्रिटिकल इवेंट के ऊपर L और E का डिफरेंस आपको स्लैक देता है, और क्रिटिकल इवेंट के ऊपर L और E बराबर होता है, तो आपके पास स्लैक 0 होता है। तो क्रिटिकल पाथ पे स्लैक 0 होता है, क्रिटिकल पाथ पे आपका फ्लोट भी 0 होता है। फ्लोट अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, जिसको मैं अभी करूंगा, लेकिन स्लैक 0 होता है। तो क्रिटिकल पाथ समझ गए आप, सबसे लंबा पाथ। जो E होता है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, किसी भी इवेंट के ऊपर जो E लिखा है वो अगली एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। किसी भी इवेंट के ऊपर जो L लिखा है वो लेटेस्ट फिनिश टाइम है पिछली एक्टिविटी का। तो ये जो L2 है ये पिछली एक्टिविटी को दिखा रहा है, और ये जो E है ये अगली एक्टिविटी को दिखा रहा है। E25 मींस एक्टिविटी D को मैं अर्लीस्ट 25 दिन के बाद स्टार्ट कर सकता हूं। L25 मींस मैं एक्टिविटी A को लेटेस्ट बाई 25 दिन तक फिनिश कर सकता हूं, ये मीनिंग है। तो इस एक्टिविटी के लिए L ये है और इस एक्टिविटी के लिए E ये है, ऐसा मतलब होता है। तो ऐसे जो सबसे लंबा पाथ है क्रिटिकल पाथ है। अब मैं इसमें से फ्रेंड्स एक कोई एक्टिविटी अगर ले लूं, उस एक्टिविटी के ऊपर फ्लोट को मैं डिस्कस करूंगा। तो कोई एक एक्टिविटी फ्लोट और स्लैक, जैसे हमने स्लैक बताया, फ्लोट एंड स्लैक क्रिटिकल एक्टिविटी के ऊपर 0 होते हैं। फ्लोट एंड स्लैक क्रिटिकल एक्टिविटी के ऊपर 0 होते हैं। तो कोई एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी लेते हैं जिसके ऊपर फ्लोट और स्लैक हम कैलकुलेट करें। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जिसके ऊपर फ्लोट और स्लैक हम कैलकुलेट करें। तो मैं 20 और 40 के बीच में, जो 20 इवेंट है और 40 इवेंट है, इसके बीच में जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी E, जिसको टाइम लग रहा है 5 दिन, जिसको टाइम लग रहा है 5 दिन, उसको मैं कंसीडर करता हूं। तो 20 के ऊपर 15 और 30 है, और 40 के ऊपर जो है वो 35 और 35 है, उसके ऊपर 35 और 35 आ गया। ध्यान से देखना, मैं इस एक्टिविटी को ले रहा हूं, अभी मैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ले रहा हूं। एक आगे आपका 20 नोड, एक आगे 40 नोड, और एक्टिविटी ले रहा हूं मैं E। अब मैं E एक्टिविटी के लिए अलग अलग फ्लोट निकाल रहा हूं कि मैं E एक्टिविटी को कितना लेट कर सकता हूं। एक बात समझ लो, 3 तरह के फ्लोट होते हैं, वैसे 4 होते हैं लेकिन 3 ही एग्जाम में आते हैं। 3 तरह के फ्लोट होते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो वो जो इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो ये जो फ्लोट हैं ये क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए 0 होते हैं। नॉन क्रिटिकल के लिए इसको कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक्टिविटी ली E, जिसको 5 दिन लगेंगे। E के लिए 20 नोड स्टार्टिंग नोड है, एंड नोड 40 नोड है, 15 30, ये 35 35, राइट। ऐसे हमने इसको ले लिया। अब लेट मी टेक यू टू द फ्लोट्स। फ्लोट्स कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के फ्लोट्स होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है टोटल फ्लोट। अब ध्यान से देखना, जो स्टार्टिंग इवेंट होता है उसको बोलते हैं आई इवेंट। 15 30, मैंने जो आपको बताया ये 35 35 35 35, ये एक्टिविटी जो हमने बताई E एक्टिविटी, इसको टाइम लग रहा है 5 दिन। ये I जो होता है स्टार्टिंग इवेंट है, और J जो है फिनिश इवेंट है। टोटल फ्लोट क्या होता है, इज इक्वल टू E फॉर दिस, J फॉर L फॉर दिस। मतलब L जो है वो J इवेंट का लेना है, E जो है वो I इवेंट का लेना है, माइनस जो एक्टिविटी को टाइम लगेगा। ध्यान से देखना इसको, 35 माइनस 15 माइनस 5, मतलब 15 दिन। मतलब इस एक्टिविटी के लिए जो हमने एक्टिविटी ली है, इस एक्टिविटी E के लिए हमारे पास 15 दिन का टोटल फ्लोट है। 15 दिन तक यहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इस एक्टिविटी को 15 दिन तक डिले कर सकते हैं आप। कैसे कैलकुलेट किया, डायगोनली डिफरेंस निकाला, इसका और इसका, टोटल फ्लोट ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, माइनस ये टाइम जो एक्टिविटी का उसको माइनस कर दिया। L ले लिया J का, E ले लिया यहां का। मतलब इस एक्टिविटी को अर्लीस्ट कब स्टार्ट कर सकता हूं मैं, इस पे। इस एक्टिविटी को लेटेस्ट कब तक फिनिश कर सकता हूं, 35 तक। LJ जो है वो इसको बिलोंग करता है, EI इसको बिलोंग करता है। तो इस एक्टिविटी को क्या बिलोंग करता है, ये E और ये L, माइनस
तो मैक्सिमम मैं कितना डिले कर सकता हूं 15। लेकिन ट्रबल पता क्या है, अगर मैं 15 दिन छुट्टी ले लूं, इस एक्टिविटी को 15 दिन से डिले कर दूं, तो शायद मैंने इस पीछे वाले की छुट्टी भी खा ली, अगले वाले की छुट्टी भी खा ली, पिछले वाले की भी खा ली, क्योंकि अर्लीस्ट मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं 15 दिन में, लेकिन ये तो इसको लेटेस्ट 30 तक फिनिश कर रहा है। अब मान लो इसके पीछे जो भी एक्टिविटी थी, जो पीछे हमने एक्टिविटी देखी, जो भी एक्टिविटी इसके पीछे थी, वो जो एक्टिविटी है उसको मैं 30 दिन तक लेटेस्ट फिनिश कर सकता हूं। मतलब ये भी तो छुट्टी ले सकता है ना। लेकिन अगर आपने अज्यूम कर लिया कि मैं इसको अर्लीस्ट 15 दिन में स्टार्ट कर दूंगा और लेटेस्ट 35 दिन में फिनिश करूंगा, मेरे पास है 20 दिन काम करने के और 5 दिन मेरा काम है, तो 15 दिन छुट्टी ले सकता हूं। जब आपने ऐसा किया तो आपने इसको भी डिले किया, आपने इसको भी डिले किया। तो टोटल फ्लोट में तुम सारी छुट्टी ले लेते हो। कैसे निकालते हो? एल ले लेते हो इसका, ई ले लेते हो इसका, इन दोनों का डिफरेंस माइनस एक्टिविटी। अच्छा, फिर मेरे पास फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट होता है, ध्यान से देखना, टोटल फ्लोट माइनस इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस मींस कि मान लो ये आगे वाला जो एक्टिविटी है ये अर्लीस्ट 35 दिन के बाद स्टार्ट होगी, अर्लीस्ट 35 दिन के बाद स्टार्ट होगी, लेटेस्ट ये भी 35 दिन के बाद फिनिश होगी। मान लो ये लेटेस्ट आपकी 35 नहीं होती, 40 दिन के बाद फिनिश होती, लेटेस्ट ये 40 दिन में फिनिश होती, तो मैं इसको 35 दिन में ही खत्म करना चाहूंगा। मैं इसको 35 दिन में खत्म करना चाहूंगा सो दैट ये अर्लीस्ट 35 दिन में स्टार्ट कर सके। अभी तो ये 35 लिखा हुआ है, मान लो 35 नहीं होता 40 होता, तो ये इसको लेटेस्ट कब तक फिनिश कर सकता है? 40। लेकिन जब ये लेटेस्ट इसको 40 में फिनिश करेगा, अगले वाला तो 40 तक स्टार्ट ही नहीं कर सकता, जबकि वो अर्लीस्ट 35 में स्टार्ट कर सकता है। तो यहां का जो डिफरेंस है वो इसमें से माइनस कर दो। तो एल ऑफ जे माइनस ई ऑफ जे, जे मैंने किसको बोला? इसको। तो इन दोनों के डिफरेंस को टोटल फ्लोट से माइनस कर दो तो फ्री फ्लोट आ जाता है। लेकिन इस केस में बराबर है, तो हमारे पास वो फ्री फ्लोट भी 15 ही आ गया, जबकि नॉर्मली फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट से कम होता है। समझ गया आप? फ्री फ्लोट में हम अगले वाले को नहीं छेड़ते। उसी तरीके से तीसरा कर दोगे तो आपके पास इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जाएगा। जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है इसमें आप पीछे वाले को भी नहीं छेड़ते, तो उसमें आप पीछे वाले का भी डिफरेंस को कम कर देते हो। तो 15 आया था आपके पास, और यहां पे आपके पास था मेरे ख्याल से 15 और 30, 15 और 30, ये था 35 और 35। तो टोटल फ्लोट कितना आया था आपके पास? सर 35 माइनस 15 माइनस एक्टिविटी टाइम। अच्छा, फ्री फ्लोट कितना था? सर टोटल फ्लोट माइनस 35 माइनस 35, वो भी आपका बराबर ही आ गया था। ये 15 आया था, ये भी 15 आ गया। और इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना आया था? फ्री फ्लोट। अब फ्री फ्लोट माइनस इनका डिफरेंस, तो पीछे वाले को मैंने नहीं छोड़ा, तो माइनस 30 माइनस 15, तो आपके पास 0। मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोट मतलब कि अगर तुम इसको ना छेड़ो और तुम इसको ना छेड़ो तो तुम्हारे पास कोई छुट्टी नहीं बचेगी। फ्री फ्लोट मतलब आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट, मतलब इंडिपेंडेंटली तुम्हारे पास कोई छुट्टी नहीं है। अगर तेरे को इसको नहीं बताना, तेरे को इसको नहीं बताना, तो आपके पास नहीं है। अब होता क्या है कि टोटल फ्लोट इज मोर देन फ्री फ्लोट इज मोर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये होता है। तो ऐसे आप फ्रेंड्स फ्लोट निकालते हो, इस तरीके से होता है। ये आपके डॉक्यूमेंट में दिया भी हुआ है। मैं अब आपको एक और एक्टिविटी दे रहा हूं, क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी के ऊपर तो स्लैक और फ्लोट 0 होता है। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी दे रहा हूं। लेट अस से इसका इनिशियल है i, इसका इनिशियल है j, और जो टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में वो लगेगा 10 दिन। ये है आपका 10, 40, ये 60, ये 80। अब पहले तो निकालो टोटल फ्लोट। सर टोटल फ्लोट मीन्स एल ऑफ जे माइनस ई ऑफ आई माइनस टी आई जे, मतलब इसका एल, इसका ई। अगर आपने वो निकाल लिया, डायगोनली निकालो, सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करो। 80 में से मैंने 10 माइनस कर दिया। अब टाइम कितना लगेगा इस एक्टिविटी को? 10 दिन। ये माइनस कर दो तो आगे 60। ठीक है, ये टोटल फ्लोट। अब मेरे पास फ्री फ्लोट बताओ कितना आएगा? टोटल फ्लोट निकाल दिया माइनस इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 80 माइनस 60 कितना था? 60 माइनस 20 मतलब 40। मतलब मैंने अगले वाले को नहीं छेड़ा। तो जब मैंने फ्री फ्लोट निकाला मैंने अगले वाले को नहीं छेड़ा, और जब मैंने इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाला तो फ्री फ्लोट माइनस इसको भी नहीं छेड़ा। 40 माइनस 30 तो कितना था? 40 माइनस 10 30। तो तुम देखो टोटल फ्लोट 60, फ्री फ्लोट 40, इंडिपेंडेंट फ्लोट 30। तो इन तीनों का रिलेशन जो है इट इज मोर देन दिस। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में ना तुम पीछे वाले को छेड़ते हो, ना तुम अगले वाले को डिस्टर्ब करते हो। इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट तुम्हारा मैक्सिमम स्कोप होता है। ये निकलता है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के ऊपर। तो आई एम श्योर मेरे आज के वीडियो में फ्रेंड्स आपको क्रिटिकल पाथ क्या होता है ये पता लग गया होगा।
स्लैक एंड फ्लोट क्या होते हैं, यही पता लग गया होगा। स्लैक एंड फ्लोट क्रिटिकल पाथ पे 0 होते हैं, नॉन क्रिटिकल पाथ पे कैसे निकालने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का जो लेक्चर था फ्लोट के बारे में, स्लैक के बारे में, क्रिटिकल पाथ के बारे में कैसे निकालते हैं उसके बारे में था, और यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है। थैंक यू।